आइए, so today we will start with activity based costing, right? Now हम लोग ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट, राइट, while we have to calculate cost of the product, तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं, बिकॉज दीज आर आइडेंटिफाइबल. बट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट आइडेंटिफाइबल बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट आर जनरली फिक्स्ड इन नेचर. सो ओवरहेड कॉस्ट एंड कंट्रोल में हम लोग सीखा है हाउ टू इंक्लूड ओवरहेड इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. दैट आंसर इज ऑन एन एवरेज बेसिस. सच एवरेज is known as overhead absorption rate or overhead recovery rate. Many call it as budgeted rate also. Now how to calculate this overhead absorption rate? Overhead absorption rate is calculated on the basis of estimated output. आपका टोटल साल में इतना खर्चा होने वाला है, इतना प्रोडक्शन करने वाला है, तो ऑन एन एवरेज यू गेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. फर्दर वी हैव आल्सो सीन दैट if I calculate, suppose if I am making similar products, then average on the basis of estimated output is fine. But if I am making different products, multiple products, then each of the product will take different completion time. So in such a scenario, average on the basis of estimated output will be wrong. Let me show you an example, right? So how to calculate overhead absorption rate? Pehle what we have done that I am telling you, then we will go for activity based costing. So estimated overhead cost by estimated output or estimated labor hour or machine hour, right? Now example 1, suppose there are two products A and B. Production unit is 500 and 500, right? Overhead cost प्रोडक्ट वाइज नहीं पता है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज 20,000, आउटपुट इज 1,000, राइट? नाउ तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन, हाउ टू गेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? सिंपल है सर, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट बाय एस्टिमेटेड आउटपुट, दैट इज एवरेज इज 20 rupees per unit. Is it fine? Product A, product B. Direct material cost we know per unit. Direct labor cost also we know per unit. Overhead cost will be 20 and 20. Yes or no? Very simple. So we will get full cost, मतलब cost of the product. Right? So this is a very simple case. We know the estimated production unit of A and B. We know total overhead cost. So total overhead cost by estimated output. Clear? So यहाँ पे average overhead is calculated on the basis of estimated output and accordingly cost of the product has been calculated. So product A में 20 rupees overhead is being charged per unit and product B also 20 rupees overhead is charged per unit. Is it fine everyone? Huh? So let us take this is as example 1. Done? कॉपी कर लीजिए.
what if I tell you labor hour required per unit 6 hour, 2 hour. So can anyone tell me what will be the total labor hour? 6 hour into 500 plus 2 hour into 500. So that comes to 4000 hour. 6 hour into 500 and 2 hour into 500. Right? Now, if I calculate overhead absorption, just I am doing it. If I calculate overhead absorption on the basis of output, so it is coming to 20 rupees per unit average. So product A में 20 is included, B also 20 is included. This is absolutely wrong allocation. The reason being, now I know the company is manufacturing different products and each product have different completion time. Previously company was manufacturing different product, but I was not knowing completion time of each unit, so I did it on the basis of output. I have to include a fair proportion of overhead to each of the products. यही तो अपने overhead chapter में सीखे हैं. तो अगर मैं 20 का allocation इसमें करूं, 20 का allocation इसमें करूं, तो क्या होगा? As compared to B, A should be charged with more overhead. क्योंकि इसको बनाने में, इसका मतलब तो यही हो गया ना, आपका 6 घंटा का भी ओवरहेड खर्चा 20 है, 2 घंटे का भी ओवरहेड में आता है क्या है? पावर आता है. तुम लोग पढ़ा ना, एस्टिमेटेड ओवरहेड रिलेटेड टू द मशीन और डिपार्टमेंट. रेंट आता है, देन यू हैव लाइटिंग चार्जेस, देन यू हैव पावर, देन यू हैव इनडायरेक्ट वेजेस, राइट? उसी का तो एवरेज निकाल रहे हैं ना हम लोग. सो यहां पर वी आर अज्यूमिंग कि 6 घंटा अगर प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है तो भी चार्ज इज 20, 2 घंटा बनाने में लग रहा है तो भी द चार्ज इज 20. दिस इज रॉन्ग एलोकेशन. एग्जाम्पल 1 में it was fine because we did not knew that products have different completion time. There were different products but completion time नहीं था. यहाँ पे तो आपको पता है ना. So you cannot do allocation on the basis of output. In that case you have to use estimated labor hour or machine hour. If the factory is labor intensive, you go for labor hour. If the factory is machine intensive, you go for machine hour. Is it fine? So in this case, when product have different completion time, different products have different completion time. So solution will go like this. Multiple products with different completion time, right? In this case I will calculate overhead absorption rate on the basis of estimated labor hour. So this is 20,000, estimated labor hour is 4000 घंटा, so it is coming to 5 per hour. कितना आ रहा है? 5 per hour. ठीक है. Now tell me ओवरहेड कॉस्ट ए में कितना आएगा? मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो है ही, उसको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दैट. ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 1 घंटे का 5 रुपया एवरेज आ रहा है, 6 घंटा लग रहा है.
तो 30 rupees will be included here. 10 rupees will be included here. Yes or no? So now you can say the product which is taking much time to get produced, उसमें ज्यादा overhead का share add हो रहा है, right? ऐसा करने से the pricing of the product will also be correct. क्या होता है ना, अगर आप ओवरहेड का एलोकेशन गलत करेंगे मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गलत है, अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गलत है तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस गलत आएगा. तो कई बार ऐसा होता है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाजार में सस्ता बिकता है तो लोग डर से नहीं लेते क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और सस्ता प्रोडक्ट बाजार में महंगा मिलता है तो लोग वैसे नहीं खरीदते. तो अगर ओवरहेड का एलोकेशन गलत करेंगे तो इट कैन अफेक्ट योर प्राइसिंग एंड देयरफॉर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अफेक्टेड. महंगा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा क्योंकि ओवरहेड कम एलोकेट हुआ है, तो वैसे लोग डरेंगे खरीदते हुए कि भाई महंगा चीज था सस्ता हो गया मतलब जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा क्वालिटी में, और सस्ता चीज महंगा हो गया तो लोग वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, बट अपने को न्यूमेरिकल से मतलब है, राइट? सो सिमिलरली दे कैन ऑल्सो गिव यू मशीन आवर, सो यू कैन आइदर डू इट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर और यू कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ machine hour. So this is absorption. Now let us come to activity based costing. Let us come to activity based costing. अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? Absorption पढ़ाया. Absorption का एक रेट आता है, ओवरहेड का one single rate. It is either on the basis of output or on the basis of hour. लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आवर, मशीन इंटेंसिव है तो मशीन आवर, राइट? समझ गए आप लोग? तो आपको एग्जाम में देख लेना है, डिफरेंट प्रोडक्ट है और सबका आवर पर यूनिट देगा, देख लीजिएगा सेम है कि डिफरेंट है. डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कंप्लीशन टाइम, लेबर आवर और मशीन आवर दोनों देगा, तो कोई भी एक ले लीजिएगा, नोट में लिख दीजिएगा, या तो क्वेश्चन में बोल देगा डू एलोकेट ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर और ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट. कोई भी एक नहीं बोलता है तो आप अपना लॉजिक देके कोई भी एक मेथड सेलेक्ट कर लीजिएगा. नाउ लेट अस कम टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट? नाउ सेम एग्जांपल से पढ़ेंगे हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. प्रोडक्ट ए, बी, टोटल. प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब वॉल्यूम 500 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, राइट? मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट 3 घंटा 2 घंटा. So what will be the total? 500 into 3 plus 500 into 2 equals to 2500 hours. ठीक है? नाउ अदर डिटेल्स भी दिया हुआ है, जैसे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर. आज प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा होगा, तो 500 बनाने में यू नो हाउ मच रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, तो वो रॉ मटेरियल का परचेज आप ईओक्यू के हिसाब से करेंगे. यस और नो? सो दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बिकम्स लो. 500 प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल का आप ईओक्यू फॉर्मूला में बैठाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये रॉ मटेरियल जो अपने को खरीदना है ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा कौन से फॉर्मूला से आता है? ईओक्यू से आता है. अगर ईओक्यू आ गया तो यू कैन कम टू नो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर. सो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इज लाइक दिस. 10 ऑर्डर्स इसका है, 15 ऑर्डर इसका है, टोटल मिला के 25 ऑर्डर.
इज इट फाइन? नंबर ऑफ डिलीवरीज, ये 500 को बेचेंगे ना तो लॉट में बिकता है, सपोज 10 यूनिट का एक लॉट है, जो भी जितना भी लॉट में बिकेगा, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना है? तो नंबर ऑफ डिलीवरीज है ये 30 डिलीवरी है, दिस इज 20 डिलीवरीज, सो टोटल में वी हैव 50 डिलीवरीज. एंड नंबर 5, ओवरहेड कॉस्ट 20,000 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ब्रेकअप ऑफ ओवरहेड कॉस्ट भी दिया हुआ है. ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है, वॉल्यूम रिलेटेड, जो भी वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड का टोटल इज 10,000. ऑर्डरिंग रिलेटेड ओवरहेड इज 6,000 एंड डिलीवरी रिलेटेड ओवरहेड इज 4,000. तो ये 20,000 आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ऐसा ब्रेकअप. मतलब जो टोटल ओवरहेड है उसको हमने एक्टिविटी वाइज क्लासिफाई किया कि ये सब ओवरहेड वॉल्यूम से रिलेटेड है. दीज ओवरहेड्स आर रिलेटेड विद नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, दिस मच ओवरहेड इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ डिलीवरीज. राइट, ये एग्जाम में आपको ये ब्रेकअप करके देगा, आपको करना नहीं है. प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ओवरहेड कॉस्ट का अलग अलग एक्टिविटी निकालना है और उस एक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी खर्चा, अभी तो अपने क्या करते थे, पूरा डिपार्टमेंट का खर्चा एज अ होल, अभी डिपार्टमेंट वाइज नहीं, एक्टिविटी वाइज. डिपार्टमेंट में परचेज रिलेटेड एक्टिविटी है, एडमिन रिलेटेड होगा, सेल्स रिलेटेड होगा, राइट, स्टोरेज रिलेटेड होगा, जितना भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी वाइज को खर्चा को डिवाइड करना है. राइट, तो ये एग्जाम में आपके लिए करके देगा. अभी अपने को निकालना है कैलकुलेट नंबर 1 ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन वाला, और वही चीज ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एबीसी वाला, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है, is it fine? देख लीजिए. चल वी स्टार्ट. आइए, सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल ऑब्लिक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज व्हाट, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट का, एक्टिविटी वाइज नहीं, डिवाइडेड बाय आउटपुट भी ले सकते हैं, लेबर आर भी ले सकते हैं, मशीन आर भी ले सकते हैं. तो आउटपुट तो लेंगे नहीं क्योंकि यू कैन सी दैट मल्टीपल प्रोडक्ट और सारे प्रोडक्ट का कंप्लीशन टाइम अलग अलग है.
अच्छा, अब आवर में कौन सा दिया हुआ, लेबर आवर दिया है कि मशीन आवर दिया है? लेबर आवर दिया है। नहीं सर, मशीन आवर दिया है। ठीक है, अगर लेबर आवर मशीन आवर दोनों देता तो आप नोट देके लिख लेते, राइट। सो हम लोग लेंगे एस्टिमेटेड मशीन आवर। मैंने क्वेश्चन भी आपको बनवा दिया और उसका सॉल्यूशन भी करवा दे रहा हूं। सो 20,000 मेरा पूरा डिपार्टमेंट का ओवरहेड है और टोटल मशीन आवर है हमारा 2,500 घंटा। तो हिसाब से कितना आ रहा है ये 8 रुपया पर मशीन आवर is my average overhead, right? Now overhead cost per unit बहुत सिंपल है। कैसे लेना है? 8 रुपया 1 घंटा का और एक प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटा लग रहा है। सो इट इज 24 रुपीज पर यूनिट। 8 रुपया घंटा का और एक एक प्रोडक्ट बनाने में 2 घंटा लग रहा है। सो इट इज 16 पर यूनिट। वेरी सिंपल। है ना? कुछ करना ही नहीं है सर। आज आपका मशीन आवर के बेसिस पे एवरेज आ गया ना। अब एक प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, उस हिसाब से आप ओवरहेड शेयर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डाल दीजिए। तो प्रोडक्ट ए का ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है 24, प्रोडक्ट बी का आ रहा है 16। सिंपल। हाँ, तो यहां पे एवरेज आया ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मशीन आवर। 8 रुपया इज द मशीन आवर रेट। इसको अपने MHR भी बोलते हैं, ओवरहेड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जो प्रोडक्ट बनाने में जितना घंटा लग रहा है उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। नाउ वी विल डू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। तो सबसे पहला स्टेप इज कैलकुलेट कॉस्ट पर ड्राइवर, मतलब कॉस्ट पर ईच एक्टिविटी। जैसे द ओवरहेड कॉस्ट जो बिजनेस का एक्टिविटीज है 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला एक्टिविटी इज वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा इज ऑर्डरिंग रिलेटेड, थर्ड वन इज डिलीवरी रिलेटेड। इज इट फाइन? हाँ, कॉस्ट पुल, कॉस्ट पुल मतलब what is the overhead cost related to each activity. With respect to volume it is 10,000, with respect to ordering it is 4,000, with respect to delivery it is with respect to ordering it is 6,000, with respect to delivery it is 4,000. ये सब क्वेश्चन में दिया है and the total is 20,000. that also we know. Now volume related cost is 10,000, so it will vary on the basis of volume. Ordering related cost is 6,000, so it will vary on the basis of number of order. बोलना चालू नहीं हुआ अभी। डिलीवरी रिलेटेड खर्चा है 4,000। इज इट फाइन? वॉल्यूम रिलेटेड खर्चा ओवरहेड कॉस्ट इज 10,000, ऑर्डरिंग रिलेटेड इज 6,000 एंड डिलीवरी रिलेटेड इज 4,000. सो दिस वॉल्यूम रिलेटेड विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वॉल्यूम. सो हर एक्टिविटी का एक कॉस्ट ड्राइवर होगा. क्या होगा? कॉस्ट ड्राइवर.
दैट इज वॉल्यूम. इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसका नंबर ऑफ डिलीवरी. सो वॉल्यूम इज 1000 यूनिट. ऑर्डर इज कितना? How much? 25 orders, and this is 50 delivery. ठीक है. सो वॉल्यूम रिलेटेड टोटल वॉल्यूम 500 500 हजार है. ऑर्डरिंग रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इज 25. डिलीवरी रिलेटेड इज राइट. अब अपने को निकालना है कॉस्ट पर ड्राइवर. क्या निकालना अपने को? कॉस्ट पर ड्राइवर. तो वॉल्यूम रिलेटेड 10,000 है एंड टोटल वॉल्यूम इज 1000. सो दिस इज 10 रुपीज पर यूनिट. राइट. परचेज ऑर्डर रिलेटेड 6000 है डिवाइडेड बाय 25 ऑर्डर्स. कितना आ रहा है बोलिए? रुपीज 240 पर ऑर्डर. 4000 इज डिलीवरी रिलेटेड. 50 डिलीवरी है. रुपीज 80 पर डिलीवरी. ठीक है. सो जो टोटल ओवरहेड था, टोटल ओवरहेड का एक सिंगल एवरेज रेट आता था, उसको हम लोग एक्टिविटी वाइज डिवाइड करके ईच एक्टिविटी का टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकाला एंड उससे रिलेटेड उसका ड्राइवर देखा. मतलब इट वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. एंड जैसे पेट्रोल कॉस्ट है, पेट्रोल कॉस्ट का ड्राइवर है किलोमीटर ट्रैवल्ड. आपने जो कैफे में बैठ के जो कंप्यूटर चलाते हैं उसका ड्राइवर इज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट. राइट. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अपने जैसे बस फेयर निकालते तो उसमें ड्राइवर इज पर पैसेंजर पर किलोमीटर. सो हर एक खर्चा का एक ड्राइवर होता है. सो कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया. कॉस्ट पुल बाय ड्राइवर. राइट. यस और नो? काइंडली सी दिस.
ये कब आया? एक एसी बंद करो. Now, step 2, overhead cost allocated to products. सबसे पहला वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट जो है 10 रुपये पर यूनिट एंड टोटल प्रोडक्ट इज 500. यस और नो? तो 5000 आएगा. 10 इंटू 500 सेम हियर 5000 आएगा. ऑर्डरिंग रिलेटेड 240 पर ऑर्डर है एंड प्रोडक्ट ए के केस में 10 ऑर्डर्स. $240 पर ऑर्डर है और बी के केस में 15 ऑर्डर्स. जिसका जितना है पर ऑर्डर आ गया ना, इसका पर आउटपुट आया था टोटल प्रोडक्ट है 500 बी 500, तो उस हिसाब से ओवरहेड आ गया. इसका पर ऑर्डर 240, टोटल 10 ऑर्डर्स एंड 15 ऑर्डर्स. डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट 80 इंटू 30 डिलीवरीज 2400. 80 इंटू 20 डिलीवरीज 1600. यस और नो? सो ओवरहेड कॉस्ट कितना आ रहा है? इस वाले का आ रहा है 9800, इस वाले का आ रहा है 10200. नाउ कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. सो 9800 इज टोटल ओवरहेड एलोकेटेड डिवाइडेड बाय 500. 10200 इज टोटल ओवरहेड एलोकेटेड डिवाइडेड बाय 500. सो इस तरीके से अपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सो इट इज कमिंग टू 19.60. It is coming to 20.40. This is it. All this is what we have to say from this chapter. Right? So activity में डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट है उसको एक्टिविटी वाइज डिवाइड करो. 4, 5, 6 जितना भी एक्टिविटीज है आपके, उससे रिलेटेड सारा ओवरहेड कॉस्ट को पुल कर लो, इसलिए कॉस्ट पुल लिखा है. देन सबका ड्राइवर सेलेक्ट करके कॉस्ट पर ड्राइवर निकालो. Then product wise calculate total overhead cost divided by number of units produced, you get overhead cost per unit. Yes or no?